Today we are starting with the chapter planning along with NCERT. In the last class, when I took the summary, आपको मैंने बताया था प्लानिंग वैसे तो हम सब जानते हैं द वर्ड प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही सोचना व्हाट टू डू हाउ टू डू व्हेन टू डू इन ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग व्हिच वी वांट टू परस्यू आई गिव द एग्जाम्पल जैसे आप लोग आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो यू मस्ट हैव प्लान उसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो भी आप लोगों ने सोच के रखा होगा नाउ लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल्स as I have been telling you repeatedly the names can be changed or maybe the same case study can come to identify. Indian Oil is the largest commercial organization ranking in the Fortune Global 10. हमें इससे कोई वो नहीं लेना है. And its vision is driven by a group of dynamic leaders who have made name to reckon with. इसमें around 34,000 workforce is there, a Maharatna company, and it has been helping the energy demands, etc. It plans up. It plans to increase its business operation all around the world. इनका objective है, ये इनका aim है, ये इनका goal है that they want to increase the business organization across the world. And it plans to invest around 20,000 crore in acquisition, मतलब दूसरी companies को acquire करना and to expand overseas. This is what they are, what you can say planning, aiming. They believe to be ahead of the demand. Last year too, it had invested something around 16,000 in various Indian project and acquisition. It is noteworthy that it ended up investing around 75,000 against the targeted plan of around 56,200. यानी कि उन्होंने अपने टारगेट को क्रॉस किया था. All investments have been in refinery expansion, upgradation of quality of refinery, building new pipeline, getting more aggressive. माने यानी कि जो आपके नए ब्रांचेस ओपन करनी है, नया आपको कुछ सेट करना, वो सारा कुछ. Recently, this is where we come. Recently, it was decided to open an office in Bangladesh. Apart from talking to the government, especially regarding LPG and natural gas, where it is trying to take a linkage from IOC pipeline going from Dhamra and West Bengal border before finally connecting to Bangladesh. ये उनका जो है, they are having the next aim. For Nepal, it plans to build a pipeline between Motihari terminal and which is currently coming up and their own facilities made inside Nepal. It has signed a MOU with Bhutan and looking for new open market such as Myanmar. यानी कि एक बांग्लादेश, सेकंड आपका नेपाल, तीसरा आपका भूटान एंड चौथा आपका म्यांमार. यहां पर आप देख सकते हो, इट इज गिवन हियर. Next, the company feels they have to keep their eyes open up. The company has good reserves and were able to generate funds through internal accruals. But on a project basis, IOC certainly go into the market, both India and overseas, depending which is cheaper to borrow money if needed. अब ये जो last वाला बताया है, this is what we say financial planning. मतलब अगर उनको they have to decide whether they want to go India or overseas, कौन सा उनको cheaper पड़ेगा, उसके लिए if they require money, they have to financial planning करके वो भी उनको arrange करना. So ये जो हमने पूरा देखा है, what it is, this is of course a broad statement given by the company. They have to be broken down into steps for implementation. ये हमारे पास एक जनरल स्टेप था कि वो क्या करना चाहते.
This is an example of a company with a nationwide reach striving to be one of the top companies. Every organization, whether private or government or a company in the private, requires planning. The government makes 5-year plan for the company. The small business makes for themselves, while the other companies have big plan, sale plan, production plan. मतलब सबका अपना होता है. एक कंपनी का होता है, एक सारे के सारे डिपार्टमेंट का होता है, देन इंटरनली सबका होता है. All business firm would like to be successful, increase their sale and earn profit. All managers dream of these and strive to achieve their goal. But ये आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन जो डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है. To turn these dreams into reality, managers need hard in thinking about the future. What is it? It is planning. Right? In making business predictions and achieving targets. Dream can be turned into reality only if business managers think in advance on what to do, how to do, which is called as planning. ये दोनों आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है एंड दिस कैन बी आइडेंटिफाई द फंक्शन हियर. यानी अगर आपको अपनी ड्रीम्स को सच में लेकर आना है तो यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान. नो डाउट, सी प्लानिंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म. ऐसा तो होगा ही होगा. प्लानिंग हम पूरे साल की करते हैं. देन वी ऑल्सो, जैसे हमारे आपके स्कूल है, लेट अस अज्यूम योर स्कूल, राइट? योर स्कूल इज हैविंग अ करिकुलम, इट इज हैविंग अ सिलेबस, और उस सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा मंथ वाइज दे हैव गिवन, इस महीने ये वाले मतलब कि इतना कोर्स, यानी कि 1 ईयर का हो गया, प्लस देर आर मंथली आपको दिया होगा, एंड देन देर आर plans for when to conduct the exams, the periodic, anything. And then you might be having one more plan which might not be for the scholastic but for the post-scholastic. तो प्लान हमारा साल भर का होता है. फिर इट माइट बी फॉर द, अब टीचर्स जो है वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से लेंगी, आप अपने हिसाब से लोगे. तो प्लानिंग विल बी शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. एंड अगर हम प्लान नहीं करके जाएंगे, रैंडमली कोई काम करेंगे, फॉर द ओवरऑल तो वो ठीक रहेगा, लेकिन इट वुड नॉट सक्सेस. एवरी बिजनेस, आज आप किसी भी बिजनेस के बारे में बात करो, दोज बिजनेस विच हैव ऑलवेज एम्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लान हैव ऑलवेज सक्सीडेड. जो शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं वो कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती. Planning is deciding in advance what to do and how to do. It is one of the basic managerial function. Pehla, primary. It is a primary one. Before doing something, the manager must formulate the idea how to work on that particular task. यानी कि it is connected with creativity and innovation. आपको नई चीज सोचनी पड़ेगी, innovate, and उसको creatively. Now don't, creative का मतलब वो कलर पेन नहीं, creative मतलब best possible. He has to first set objectives, then only he will know where he has to. Planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. ये आपका assertion and reason, स्टेटमेंट एनालिसिस, एमसीक्यू, तीनों में आया हुआ है. प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल डू, यानी कि इट इज परवेसिव. इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. यहां पर ये परवेसिव, ये आपका मेंटल एक्सरसाइज.
These are the lines and these are the features. अगर पेपर में आता है तो you have to see what it means. Planning thus involves setting objective, developing appropriate course of action to achieve these. Objectives provide direction for all managerial decision and action. It provides a rational approach. सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको प्लान करोगे तो आपको पता होगा आपको क्या अचीव करना है. तो जब आपको ये पता होगा ना मुझे ये चीज अचीव करनी है तो आपको डायरेक्शंस भी पता हो. हम में से आधे लोग चाहे अपने स्कूल में अपनी लाइफ में कहीं पर भी व्हेन वी आर नॉट सक्सेसफुल इट इज बिकॉज हमने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को प्रॉपरली नहीं दिया हो. वी डोंट टेक दैट डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री-डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. मतलब रेशनल मतलब सही और गलत को it would differentiate. When you plan, you would be having, for example, say you are planning on a money area. तो अब आपको पता होगा what is your budget, what you are having. फिर आपको ये भी पता होगा आप कितना खर्चा कर सकते हो on a project. So it would help you to decide the right path. Planning, all members therefore need to work towards achieving organizational goals. These goals set the targets which need to be achieved and against which actual performance is measured. यानी कि it provides, इसका मतलब है it provides the standard for controlling. It means planning means setting objective, targets, formulating action plan. It is concerned with both ends, यानी कि what is to be done and how it is to be done. The plan that is developed has to be given time frame. भाई प्लान कर लिया है वो आप लोगों ने मीन्स तो देखी होंगी कि we planned a Goa trip when we were young and we went when we were old. तो टाइम फ्रेम नहीं रहेगा तो उसका मजा ही नहीं आएगा. यानी कि यू नीड टू हैव अ प्री डिटरमाइंड लिमिटेड टाइम. तभी उसमें हम एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों ला सकते हैं. टाइम्स अगर रखोगे तो उसका फायदा होगा. बिना टाइम के आप कोई भी काम कंप्लीट करोगे दैट विल नॉट हैव एनी फन. If time factor is not taken into consideration in the environment may change and all business may go waste. यानी कि अगर आप प्लान को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो then it will not be having any fruit. It will be futile. Futile मतलब बेकार if it is not acted upon or implemented. So do you think from the above we can formulate a comprehensive plan? One of the way is to do would be to define planning as setting objective for a given time, formulating various courses, selecting the best possible alternatives, and then implementing it. ये आपके steps है वो हम बाद में करेंगे. In another word, अभी तक जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है class 12, it is what is planning and what are the features of planning. Planning is primary. It is the creative, it is futuristic, it is pervasive, it is a mental exercise, it involves decision making. Then it provides standard for controlling. These are the features. Right? We have already studied them in the notes thoroughly. Now, why do we need? जो फीचर्स है वही आपका इंपॉर्टेंस भी है. भाई अगर आप प्लान करते हो यू हैव सेट एन ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि उस ऑब्जेक्टिव को आपने धीरे धीरे मतलब व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक. मे बी यू आर टेकिंग अ बेबी स्टेप, मे बी यू आर टेकिंग अ जायंट स्टेप. तो कैसे लोगे तो यानी कि डायरेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्ट कर रहा है.
कि भाई अब हमें ये करना है. नाउ आई हैव प्लान दैट आई नीड टू गेट 90%. तो नाउ आई नीड टू स्टडी रेगुलरली. वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है. You must have seen in films and advertisement how executives draw up plans and make powerful presentation in boardroom. मतलब ये तो आप लोगों ने, मैंने उस दिन बताया था ना, lots of Excel sheets, lots of presentations. So, do they actually work? Planning is certainly important because it tells us where to go, provide direction, reduce risk of uncertainty. So, what it does, it provides direction. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. आपको इसे ऐसे करना. Anything for a company say it has given, मतलब हमारा प्लान है कि हमें मतलब इस साल 10% मार्केट शेयर लेना है. तो 10% मार्केट शेयर लेना है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, वो हमें डायरेक्ट करना. It ensures goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do, what they must do to achieve this, they would be able to do it. भाई अब आप एक दिन में रातों रात तो यू कैन नॉट सी. इट इज ओनली इन मूवीज जहां इंसान जो है चलते चलते बड़ा हो जाता है. अ कंपनी कैन नॉट बिकम बिग इन वन गो. सो वी नीड टू गिव अ क्लियर डायरेक्शन टू ऑल ऑफ अस. लेट अस टेक, आप लोग सभी मूवीज देख. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ योर मूवी बफ, मतलब कितने लोग बहुत मूवीज को देखते हो. कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्शन, जिनमें जिनमें मतलब बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरीज होती है, सेट बहुत सुंदर होता है, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे होते हैं, गाने बहुत अच्छे होते हैं. व्हाई दैट इज? बिकॉज द डायरेक्शन इज देयर. जिसने डायरेक्ट किया है वो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, उसने हर चीज के लिए डायरेक्शन दिखाया है. So those people who are working under them, उनको पता था उन्हें क्या चाहिए, उनका एंड कैसा होना चाहिए. Departments and individuals are able to work in coordination. If there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goal. भाई अब सबको बोला गया है कि you have to complete this work. ठीक है, सबको बोला. But there is no time frame, there is no proper direction. तो अब क्या किया जाएगा? जिसका जैसा मन करेगा वो वैसे करेगा. I'll cite one example for this. While you are preparing the thesis, जब हम डॉक्टरेट के लिए thesis करते हैं, even in abroad, even for the normal also, मतलब नॉर्मल जो कोर्स होता है उसमें भी, BBA BCom, उनमें भी, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, यू ऑल आर सिटिंग एंड यू आर, व्हाट यू आर डूइंग इज, कोई बात कर रहा होगा, कोई इधर देख रहा है, कोई पढ़ते पढ़ते व्हाट दे आर लुकिंग इनटू हियर, कहीं पे फोन पे बातें हो रही हैं. राइट? डिसिप्लिन इजंट देयर इन अनदर वर्ड. एंड व्हेन यू आर गिवन अ वर्क, I'm not talking about you, I'm talking about a general students category. And if they have not been given the correct information direction, उनको जो सही लगता है वो दे. But if you come to the thesis part, when you come to, as I said, abroad, वहां पर they give clear cut directions. आपका सिंगल वर्ड किसी भी बुक, किसी भी वेबसाइट से मैच नहीं करना चाहिए. सो व्हेन यू आर स्टडिंग, आपको लैपटॉप दे दिया जाता है कॉलेज में, बट
यू आर नॉट गिवन एनी पर्सनल कनेक्शन जहां आप गूगल कर लो, जहां से आप मीनिंग साइट करो. And if you are copying and pasting even a single line, आपको thesis में भी अब्रॉड में भी आपको नीचे साइट करना पड़ता है, ये लाइन आपने इस वेबसाइट से इस ऑथर से लिया. तो वहां when we are doing it, there is complete direction. हमें पता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारे ऊपर प्लेगरिज्म का केस चल जाता है. वी वुड बी पनिश फॉर प्लेगरिज्म. यानी दे हैव बीन प्रोवाइडेड द प्रॉपर डायरेक्शन, लेकिन अगर आप वो चीज नहीं दोगे तो बच्चे क्या करते हैं? हॉलीडेज होमवर्क होता है तो बच्चे क्या करते हैं? दे टेक हेल्प ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल देयर. कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई एआई से कर रहा है. तो जब तक आप किसी को एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दोगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट शुड नॉट बी डन, रूल्स, हाउ मच मनी यू नीड टू स्पेंड, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव द गोल्स एज यू वांट. और यही कंपनीज में भी होता है. सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में कितनी बार पढ़ा कि जो हमारा आप जो सिचुएशन है, दैट इज ऑलवेज व्हाट वी कॉल एज अनसर्टेन. वी डोंट नो, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता. इवन अ change in the weather condition can change the entire plans. Planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate things. Anticipate का मतलब होता है अंदाजा लगाना. Anticipate का मतलब हो जाता है आपका कि थोड़ा बहुत पहले से अंदाजा लगाना. By deciding in advance a task to be performed, it shows a way to deal with changes and uncertain events. अब uncertain events आप सोचोगे कैसे पता होगा मैम? तो we just anticipate. बारिश का मौसम है तो क्या क्या हो सकता है? सड़कें बंद हो जाती हैं, रोड्स में पॉथहोल्स हो जाते हैं, यानी कि हमने एंटिसिपेट किया. तो जब हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये दोनों चीजों को जो है वी आर एंटिसिपेटिंग. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. by chance, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं? I'll give my own example. Please don't take it on the other side. मैम अपनी तारीफ कर रही है, but I really am very planned person. और मुसीबतें भी झेलती हूँ मैं उसके लिए, because I don't deviate from my plans. When I am making your timetables, आप लोगों का टाइम टेबल बनाती हूँ. आज 9th को ये पढ़ाना है, 10th को ये पढ़ाना है, 11th को ये पढ़ाना, 11th तो भी है नहीं, 12th को ये पढ़ाना है. I would be making the plans for 3 days. यानी कि आज ट्यूसडे है, राइट? तो आई बी मेकिंग इन दिस मैनर. आज मुझे 12th को प्लानिंग करवाना है, 10th को ये करवाना है, तो आज मैं प्लानिंग का इतना पोर्शन करवाऊंगी तो थर्सडे को मेरा ये होगा. अगर मेरा थर्सडे को ये होगा तो मैं सैटरडे को आई बी डूइंग द असाइनमेंट, तो मैं असाइनमेंट को पहले ही प्रिपेयर करके रख दूंगी. रीजन, हो सकता है फ्राइडे को मैं मर गई, हो सकता है फ्राइडे को मैं गिर गई, आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर, हो सकता है मेरे घर में मेहमान आ गया. These are anticipating. These are anticipating. For example, for Monday, I have the English class for all the students, right? So I would be making proper things on Friday. मैं फ्राइडे को बना के रखती हूँ, चाहे आपका टेस्ट बनाना हो, चाहे आपके असाइनमेंट्स बनानी हो, चाहे मुझे आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करनी हो. Everything I'll do on Friday. I don't do it on Saturday and Sunday. Reason? Saturday I have the class and Sundays I don't know. Sunday is the only holiday.
So maybe I'm not at home. Then Monday को मैं क्या करूंगी if I am not prepared? So I need to be prepared. So I always anticipate the things. हो सकता है मैं छुट्टी कर दूं. We are humans. We can get ill. We can go somewhere. So anticipating in advance, I'll be doing everything accordingly. मेरे assignments आप मानो या ना मानो, if I have to give you a test, my test will be prepared on Friday. Latest by Friday, not more than that. And this is because I need it. Business में भी ऐसा ही होता है. आप किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. बारिश को आप रोक सकते हो, धूप को आप रोक सकते हो. सो एज अ बिजनेसमैन, जो भी आपका बिजनेस है, यू हैव टू एंटिसिपेट कि भाई अगर बारिश हो गई और मेरा सामान गोदाम तक नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूंगा. तो उसके अकॉर्डिंग यू विल बी मेकिंग द प्लान्स इन एडवांस कि मैं 2 दिन पहले मंगवा लूंगा. दैट इज हाउ वी डू. It reduces overlapping and wasteful activities. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different division, department, and individual. So that means सबको clarity है. There is no misunderstanding. It ensures clarity in thought and action. Work is carried on smoothly without interruption. यानी यूजलेस रिडंडेंट. रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटिंग. रिपीटिंग एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड. उसने भी कर दिया, आपने भी कर दिया. करना किसको था, किसको करना था? इफ दैट इज क्लियर, आई हैव टोल्ड माय मेंबर्स, माय टीम मेंबर्स, दैट यू नीड टू टेक अ शीट, एक्सेल शीट प्रिंटिंग ऑफ दिस. अब मैंने डायरेक्ट नहीं किया, प्लान नहीं किया, मैंने नहीं बताया कि किसने करना है. मे बी इट इज ओवरलैप. सो इफ इट इज क्लियर, प्लान कर रखा है, दिस एक्शन विल बी डन बाय दिस पर्सन, दिस विल बी डन एट दिस टाइम, overlapping and wasteful are minimized. It is easier to detect inefficiency and take corrective measures. ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको तब और अच्छे से समझ आएगी जब आप कंट्रोलिंग चैप्टर करो. क्योंकि जब आपने प्लान कर लिया और आप पीछा फॉलो अप कर रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो, वहीं पर आपको पता लग जाएगा कि मान लीजिए यू हैव गिवन 10 days टाइम टू योर टीम मेंबर्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. आपने अपने टीम मेंबर को 10 दिन का टाइम दिया. राइट नाउ अगर आप 10 दिन बाद सोकर उठे और आपने कहा भाई काम हो गया, तो एक ने कहा सॉरी मेरा लैपटॉप हैंग था, दूसरे ने कहा मैं तो 4 दिन एब्सेंट था, तीसरे ने कहा कि मैंने काम कर लिया. इट वुड नॉट बी. बट इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग, इफ यू आर फॉलोइंग अप, आप बीच बीच में रिपोर्ट्स भी ले रहे हो, आपको वहीं पर पता लग जाएगा वेयर देयर इज डेफिशिएंसी. तो आप प्लान करके चलोगे तो इट वुड बी हेल्पफुल. इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. अब इस वाला जो, ये वाला जो है ना क्लास 12, इसका एकदम ऑपोजिट आएगा आपका, इसका डीमेरिट, इसका लिमिटेशन. प्लानिंग reduces क्रिएटिविटी. एक तरफ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, दूसरी तरफ इट reduces क्रिएटिविटी. हाउ? सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन ही आपका प्लानिंग है, तो न्यू आइडियाज कैन शेप अप. आप नए नए आइडियाज ला सकते हो. जो आपके पिछले उसमें आपने कर लिया प्रोजेक्ट में, मे बी आपका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, यू कैन add something, you can modify. It is the most challenging activity for the management as it guides future action leading to growth and prosperity of the business. It facilitates decision making. It helps manager to look into future, make a choice. ये जो पूरा लिखा है ना, this is all actually the steps in planning. आप प्लान ऐसे थोड़ी कर लेते हो.
आपको पहले सोचना पड़ता है, आपको सामने ऑल्टरनेटिव्स रखने पड़ते हैं, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है, आपको सारे फ्यूचर कंडीशंस को एंटिसिपेट करना पड़ता है, एंड देन यू डिसाइड. सो इट facilitates your decision making. It establishes standards for controlling. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया दैट आपने अपने टीम मेंबर को 10 दिन का काम दे दिया. You gave them the work and you told them to complete the work in 10 days. Now, if you want to check, तो किस पर चेक करोगे आप? On what basis आप चेक करोगे? The basis will be कि आपने 10 days का काम दिया है, तो इन विद इन 5 days कितना काम होना चाहिए था, यानी कि आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट है. द स्टैंडर्ड कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. मतलब आप नंबर्स में, यूनिट्स में भी बोल सकते हो, और आप उसको क्वालिटी यानी कि बेटर क्वालिटी उसमें भी बोल सकते हो. तो कंट्रोल आप तभी कर सकते हो जब आपने कुछ प्लान किया होगा, जब आपने उनको कोई स्टैंडर्ड दिया होगा, उसी को तो वो पूरा करेंगे ना. हाउ यू विल चेक? द एंड प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स. The entire managerial process is concerned with accomplishing this goal through planning, organizing, staffing, directing, and controlling. It provides the goals or standard against which actual performance is measured. By comparing actual performance with some standard, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. कभी कभी क्या होता है in the companies, you will be reading this in controlling also, in the companies हम लोग unrealistic target setup कर देते हैं. जब आप टारगेट को सेट करते हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी है. वर्कर की एफिकेंसी, देन द सराउंडिंग्स. हो सकता है कि आपका जो इस वक्त में सराउंडिंग है वो इतना अच्छा नहीं है. यू हैव टू लुक इनटू ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. उसके बाद आपको सेट कर, बट आपने कर दिया अनरियलिस्टिक. तो जब आप उसको बीच में चेक करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द डिविएशन हैज बीन देयर. उसके लिए पहले प्लान करोगे तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते. इफ देयर इज एनी डिविएशन, इट कैन बी करेक्टेड. देयरफॉर वी कैन से प्लानिंग इज अ, ये पेपर में भी आता है, प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग. ये आपका असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में आता है. If there were no goals and standards, then finding deviation which are part of controlling would not be possible. अभी मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको बता दिया. I have already given you this example. The nature of corrective action required depends upon extent of deviation from the standard. Therefore, it provides basis of control. कितना आप deviate कर रहे हो. जैसे अभी मैंने कहा, कई बार कंपनीज अनरियलिस्टिक कर देती है, और वो तभी हमें पता होगा जब हम स्टैंडर्ड को सेट करा, कितना किया. जब कितना किया है और कितना हुआ है, इन दोनों के बीच को हम बोलते हैं deviation. I have to complete one chapter in 3 days, but I have not completed 1/4 of the chapter in 3 days. Deviation हुआ है. So now I have to first of all, मुझे ये जो मैंने पहले बोला ना, I have to complete one chapter, वो मेरा प्लानिंग था. तो मैंने सेट किया है, फिर मैंने देखा है कि मैंने नहीं किया. तो क्यों नहीं किया? Then I'll find out the reasons for deviation. I was ill, the chapter was long, the students were absent, there was a holiday. यानी कि मैंने deviations की reasons find किए, लेकिन वो reasons मैंने कब find किए? When I knew that what I had to do and what I have not done.
let us have the quick recapitulation what we learned today. We learned what is planning. Then planning matlab deciding what to do, how to do, when to do. बट प्लानिंग हमेशा हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है, राइट? फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सी विदाउट प्लानिंग you would not be provided any direction. I gave you ample example कि कोई भी काम करना होता है, जब तक आप उसको नहीं बताओगे कि वो काम कैसे करना है, the work will not achieve its goal. तो प्लान करोगे तो आगे का डायरेक्शन अपने आप आपका सेट होता. सेकेंडली, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. बिजनेस जो है, इट इज सराउंडेड बाय मेनी अनसर्टन सर्कमस्टांसेस. जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल चेंजेस, चेंजेस इन द व्हाट यू से आवर टेस्ट, लीगल एक्शंस. नई नई चीजें आजकल आ जाती हैं, तो लॉ निकाला जाता है कि भाई अब आपको ये चीज नहीं करनी है, ये करना है, आपको ये वार्निंग देनी है, आपको ये, तो दैट लीगल. देन इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल. These uncertain events cannot be eliminated. आप नहीं जानते हो what is going to happen. But if you have planned well, और आप उसके चेंजेस को उसे रिलेट करे हुए जो अजम्पशंस है उनको आप एंटिसिपेट करते हो, यानी कि अंदाजा लगाते हो ऐसा हो सकता है, then definitely you would be able to achieve your goals in a better manner. देखो बच्चा, प्लानिंग रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता, बट अगर हमने प्लान किया है तो टू सम एक्सटेंट उसको हम कोशिश कर सकते हैं टू रिड्यूस. देन इफ देयर इज प्रॉपर डायरेक्शन, अगर हमने प्लान करके डायरेक्शन दिया है तो एक्टिविटीज आपकी ओवरलैप नहीं होंगी. देयर वुड बी अ स्मूथ फंक्शनिंग. आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा विद ऑल द डिपार्टमेंट्स. इट प्रमोट्स, क्योंकि प्लानिंग पहला है तो पहली बार है, तो आप देखो नई नई चीजें आपके दिमाग में आएंगी, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. सो इट प्रमोट्स द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, वी वुड बी चूजिंग द बेस्ट वायबल ऑप्शन जो हमें उस वक्त लगे, तो वो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता. इट एस्टैब्लिशेस द कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स. अब कंट्रोल करना है विच इज एन अनदर फंक्शन, लेकिन आप कंट्रोल कब करोगे, किस स्टैंडर्ड पर कंट्रोल करोगे? अगर आपने डिसिप्लिन का कोई भी एक, डिसिप्लिन इज वन, आई ऑलवेज टेक इट, डिसिप्लिन इज वन एज. ठीक है, आपने बोला है मेरे ऑफिस में एवरी पर्सन नीड्स टू बी देयर बाय 9 o'clock, लेकिन आप 9 o'clock के लिए आपने कोई एस्टैब्लिश नहीं किया, आपने सिर्फ ये बोला सबको टाइम पर आना है. नाउ व्हाट इज टाइम? तो यू वुड बी सेटिंग सम स्टैंडर्ड. आपने कुछ मतलब कहीं पर कुछ प्रिविलेज दे सकते हो सकता है बारिश का मौसम है, 5 मिनट आप लेट आ रहे हो, आपने कुछ स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया होगा. जब तक आप वो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश नहीं करोगे, आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हो, आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि काम गलत. Now it can be a discipline, it can be quantitative, qualitative. It establishes the standards for control. This is what we have done today. In the next class, we would be studying with features which we have already discussed. कि प्लानिंग आपके फीचर्स क्या है, परवेसिव, प्राइमरी फंक्शन, अचीविंग गोल्स, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज. देन इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज लिमिटेशंस. वो इसी चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा रहते हैं, इसी चैप्टर में एक्चुअल में है. You don't have any limitations of directing. Then process, these all we would be completing by the next only. Only the types of plans may be, this is what, अब ये जो types of plans है, इनको करने के लिए whenever you are learning class 12, make it sure कि you have a table in front of you. Table means a drawn table.
और उसके अंदर जो क्लू वर्ड जब आप पढ़ोगे और वो क्लू वर्ड जो है उन्हें सामने सामने लिख लिख के रखना, because that can be a match the column question, that can be an MCQ, and that can be an identification. And with that, the chapter would be, of course, completed in all the sets. So that is what we have started with the chapter planning.